हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रोपति यूट्यूब चैनल एंड एस्ट्रोपति.com, जहाँ पर हम करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स को रिव्यू एंड उसके साथ साथ बनाते हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियोस ऑन एस्ट्रोलॉजी। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है ऑन सैटर्न थ्रू हाउसेस, एंड बिकॉज वी आर डूइंग सैटर्न ऑफ कोर्स डिले तो होना ही है। तो बिटवीन सैटर्न इन दी 10th हाउस एंड सैटर्न इन दी 11th हाउस काफ़ी गैप हो गया इन बिटवीन। सो उस गैप को आज हम फुलफ़िल करेंगे फाइनली, एंड वी विल डू सैटर्न इन दी 11th हाउस। एंड ये वीडियो मे बी मोस्ट लाइकली वोंट बी मोस्ट वॉच्ड वीडियो बिकॉज you will see in the coming time. So let's get into it right away. So Saturn in the 11th house. पहले 11th house क्या है? 11th house is all about hopes and wishes and gains and your network circle. So जैसे कि 10th house है where you work hard, it's your profession or whatever efforts you put into, you know, whatever career you have, whatever profession you have is through 10th house. But उसका जो reward है, immediate reward जो है, that we can see from 11th house. And such a great thing, efforts and rewards both are controlled by Saturn. 10th and 11th, 10th house, 11th house, 10th sign and 11th sign both are controlled by Saturn. And 11th sign or 11th house is majorly ruled by Saturn because it's also like, you know, Saturn की मूल त्रिकोण राशि जो है Aquarius, that falls under the 11th sign और 11th house. So उसकी एनर्जी जो है, एक्वेरियस की एनर्जी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है इन दी 11th हाउस. एंड देयर कम सैटर्न. Who is Saturn? Saturn is restrictions. Saturn is delay. Saturn is reality. Saturn is someone who shows you आप कितने पानी में हो, आपकी औकात कितनी, आप कौन हो, क्या हो, जो दर्जा होता है लोगों का, जो you know, like an illusion when you meet someone and you talk someone and then they say हाँ मैं यहाँ काम करता हूँ या मेरा ये बिजनेस है, तो उससे आपको एक आइडिया आ जाता है कि आदमी की वैल्यू कितनी है. Imagine you meet someone who says नहीं मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, मैं जॉबलेस हूँ, तो immediately the aura drops, the energy drops and you feel like okay, you know, अंदर से ही उतनी रेस्पेक्ट आती नहीं है सामने वाले के लिए, बट नेचुरली इट्स बैड थिंग. सामने वाला भी क्या कर सकता है, उसको नहीं है जॉब या नहीं है काम या whatever due to some reason, but that aura that you get as soon as you come to know what the person is doing is you know, through Saturn. And the aura of what you're doing and how much value you have or how much wealth or money or, you know, gains you have is also represented by Saturn. So दोनों चीज़ें कंट्रोल करते हैं Saturn, interestingly. So that's very good. It's Indian karma. You reap what you sow. So जो कर्म करोगे, जो कर्मा करोगे, जो एफर्ट डालोगे, उसका रिवॉर्ड मिलेगा. That is Saturn. That is 10th house and 11th house. Simple. As simple as that. Okay. What happens when Saturn is in the 11th house? So जैसे कि मैंने कहा था कि ये बहुत ही कम देखा जाने वाला वीडियो है, क्योंकि ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते नहीं हैं यूजुअली, बिकॉज सैटर्न इज़ वेरी गुड ओवर हियर. वन प्लेसमेंट आफ्टर सैटर्न इन लिब्रा इज़ this placement, Saturn in Aquarius or in the 11th house after the 7th house. So why? Because it's his own मूल त्रिकोणा sign. और कोई अपना घर क्यों ही बर्बाद करेगा या अपना घर क्यों ही डैमेज करेगा, राइट? सो आफ्टर, यू नो, एनी प्लैनेट बीइंग इन एन एक्सल्टेड साइन, सबसे ज़्यादा हैप्पी कोई प्लैनेट अगर कहीं होता है तो वो अपनी राशि में होता है, स्पेशली मूल त्रिकोण राशि में. इट्स लाइक, यू नो, लाइक फॉर एग्जांपल सैटर्न है एज अ प्लैनेट एंड इट्स एक्सल्टेड इन लिब्रा. So it's like Saturn went to some friend's place जहाँ
he's having a lot of fun, he's enjoying, he's happy, he's in a good company. अपने ही दोस्त का घर है, भाई का घर है, जैसे रहना है अपना घर समझ के रहे वो सब. So Saturn is very happy. In Capricorn it's like a vacation home. अपना ही घर है but दूर है, it's in a different environment. Though you own the house, but it's like, you don't live there longer, or there is still some discomfort or still some disconnect in that house. But you're the most happiest, or you are mostly at peace when you are in your own home. अपने घर में जो होते हो तो तुम राजा हो, तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो. तो यही Saturn in the 11th house दिखाता है. Saturn is happy, Saturn is okay. Saturn ने सारे अपने कर्म सब फुलफिल कर लिया, सब देख लिया, कर लिया, सब मेहनत कर ली. It's time for money. It's time for rewards. That's why Saturn is most likely happy here. A good placement for Saturn. What we can see is people are wealthy. People usually get a good amount of wealth with this Saturn, but it will be like an humble wealth. I'm sorry, I'm not saying health, but it's wealth. But also, health is wealth. But we are talking about gains and money. So, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा होता है ऐसे लोगों के पास. The thing is, they are humble because Saturn has made them humble. सैटर्न अगर कुछ देते भी हैं तो इजीली मिलता नहीं है. तो ऐसे लोगों को बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा अप्स एंड डाउन देखना पड़ता है लाइफ में. अगर एरोगेंस दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं, ईगो दिखाते हैं, तो दिस गेन डजंट कम इजीली. एंड इफ समथिंग हैज़ टू कम, स्पेशली थ्रू सैटर्न एंड बिकॉज ऑफ सैटर्न, आपको इतना हम्बल करेंगे कि आप भूल जाओगे उसका वैल्यू व्हेन यू गेट द मनी और व्हेन यू गेट द गेन्स. सो व्हेन यू गेट द गेन्स एंड ऑल, यू फील लाइक ओके. एंड सच पीपल आर लाइक कुछ मिलियनर्स बिलियनर्स होते हैं. आपके बाजू में खड़े होगा कोई आदमी, सिंपल से कपड़े पहना है, सिंपल सी कार चला रहा है, बट होगा बिलियनर या मिलियनर एंड आपको पता ही नहीं चलेगा. सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर Saturn in the 11th house. उनकी वेल्थ देख के पता नहीं चलती, वो दिखाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता उस वेल्थ का. तो ये एक नोटिस करोगे. गेन्स बहुत इजीली मिल भी जाते हैं. तो यूजुअली अगर Saturn is in the 10th house or in any other house, the thing that Saturn has to give is slow, it's delayed, it's a bit of conflict and कुछ ना कुछ difficulty and delays उसमें होंगे. But with Saturn in the 11th, usually they get rewards faster for whatever efforts they have put in. Well, it also depends कि कौन से साइन में है, exalted है, debilitated है, या कोई और प्लैनेट एक्सपेक्ट कर रहा है या साथ में है. तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट्स माइट चेंज, बट यूजुअली अकेले हैं या फिर गुड पोजीशन में है, एक्वेरियस में 11th हाउस में है या फिर लिब्रा में 11th हाउस में है, तो काफ़ी ईजीली इनको गेन्स मिलते हैं थ्रू देयर एफर्ट्स. दैट्स द बेस्ट थिंग दैट हैपन्स विथ दिस सैटर्न. इनका नेटवर्क सर्कल जो होता है ऐसे लोगों का, वो काफ़ी मैच्योर होता है, राइट. लाइक इट वोंट बी लाइक इमेच्योर और अपने एज से कम लोग के साथ उठना बैठना उतना नहीं होता इनका. इनको अट्रैक्ट करता है सम वाइजर पीपल, सम ओल्डर पीपल. ये शायद से एज में कम होंगे और इनका नेटवर्क जो होगा बड़े लोगों के साथ बैठना उठना होगा. बातें भी ये खुद वैसे ही करेंगे, उनका एक परसेप्शन ही वैसा बन जाता है. तो इनको इमेच्योर लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और इनका सर्कल भी इमेच्योर नहीं होता है. काफ़ी मैच्योर लोग होते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले या प्रॉपर्टीज़ में कोई डील कर रहा है या फिर किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है. सो इनको अपने नेटवर्क के थ्रू भी बहुत सारे गेन्स होते हैं इन एनी वर्क दैट दे वांट टू डू. लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक बिजनेसमैन है, उसको कुछ एक बिजनेस करना है, एंड दे फाइंड such people who are ready to help them like a mentor. तो
एंड लाइक मेंटरशिप भी मिल जाएगी उनको, इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगा, एक गाइडेंस भी मिल जाएगा. तो इट्स लाइक इट्स देयर फॉर देम, लाइक प्लेट में लाके दिया हुआ है. All this people have to do is act mature. If they are immature, then Saturn will make them mature enough, and then connect with the right people. So अगर आप mature नहीं हो तो it's okay, take your time, you will go through the process, you will learn yourself. ऐसा कुछ ये नहीं कि आज के आज ही mature होना है. वो सोच से mature कोई होता नहीं है, वो experience से होता है. तो आप एक्सपीरियंस लो लाइफ में, और कुछ कमी है तो इट विल बी फुलफिल्ड. एंड इफ़ यू आर मैच्योर इनफ, सो यू मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग दिस टू connect with people, or you might be connecting with people, or you might be guiding someone, telling someone to become mature, and helping them to gain some gains of wealth and other stuff in life. So you never know. So इनको नेटवर्किंग अपने वर्क के रिलेटेड काफ़ी पसंद है. तो जहाँ भी आप काम करते हो या आपका बिजनेस हो, तो उनके साथ ही आपको खाना पीना, बाहर जाना, पार्टी, ये वो. आपके दोस्त मतलब आपके ऑफिस कलीग्स. तो ऑफिस में आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपको अच्छा लगता, लाइक बहुत ही ज़्यादा पसंद, तो आपका कहीं ना कहीं सैटर्न इन द 11th हाउस होगा. तो दैट बिकम्स योर नेटवर्क सर्कल फॉर 24/7. बाहर भी जाना है, मूवी जाना है, हाँ मैं कलीग्स के साथ जा रहा हूँ. बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हाँ मैं कलीग्स के साथ कर रहा हूँ. अरे बाकी तेरे दोस्त हैं या नहीं? नहीं है. होंगे, पर दिस पीपल दे लाइक मोर टू सोशलाइज विद देयर प्रोफेशनल setting, and mostly act also professional. Like ऑफिस की पार्टी है, ऑफिस की पार्टी में जाओ, प्रोफेशनली बात करो, करियर के बारे में बात करो. पर्सनली में भी 3-4 ड्रिंक होने के बाद शायद से हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है. उसमें भी प्रमोशन की बात कर रहे हो, बॉस को आप मस्का लगा रहे हो, बियर ला के दे रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो. तो दैट socializing with your professional network, that is also very eminent in this position. यहाँ से सैटर्न जो है, इट लुक्स एट योर फर्स्ट हाउस. तो तीसरी दृष्टि जो है फ्रॉम 11th हाउस गोज ऑन द फर्स्ट हाउस ऑफ योर चार्ट. तो उसमें क्या होता है कि दिस people are very hardworking. That's what people think. They are, or they are not, whatever it is. But जो एक perception बनता है ना, when you meet this kind of people will say, yeah, he's very hardworking यार, बहुत मेहनती है, बहुत भाग दौड़ करते रहता है. क्योंकि कभी भी आप कॉल करोगे, इनसे बात करोगे, हाँ मैं यहाँ हूँ, हाँ मैं वहाँ हूँ, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, हाँ मैं वो कर रहा हूँ. मे बी कुछ वैल्यूएबल चीज़ होगी नहीं, वो कुछ पार्टी या फिर कुछ छोटा मोटा काम कर रहे होंगे. बट द परसेप्शन दैट कम्स, दिस गाय इज ऑलवेज बिजी, दिस गाय इज ऑलवेज डूइंग समथिंग. सो दैट बिकम्स देयर पर्सोना. एंड इन सम केसेस दे मस्ट बी फॉर रियल वेरी हार्ड वर्किंग. बहुत मेहनत करना, बहुत ही एक इतना सब गेन्स मिला है, तो उसको बनाए रखना भी एक कला है. तो ऐसे लोग वही चाहते हैं कि लाइक हाँ मैं एक लेवल तक पहुंच गया, तो आई विल मेंटेन दैट. आई हैव गॉट सम अमाउंट ऑफ गेन्स, आई विल मेंटेन एंड आई विल ट्राई हार्ड टू गेन मोर. सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग व्हेन सैटर्न इज लुकिंग एट द फर्स्ट हाउस विथ हिज थर्ड दृष्टि. यहाँ से सैटर्न ऑल्सो लुक्स एट द 5th हाउस ऑफ द चार्ट थ्रू इट्स 7th दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि. तो यहाँ पे एजुकेशन में थोड़े बहुत डिले हो सकते हैं. मे बी अर्ली एजुकेशन इन योर स्कूल, some delays or some setbacks, some failure or something, some distraction that was happening, that was taking away your education, but you worked really hard to gain it back. And there might be something, some mark on your report card कि यार एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, या 1 साल का ड्रॉप हो गया. तो that mark will always be there, it will be shown.
वो आगे काम आए ना आए, but when you're going to that schooling or college or whatever education you're taking, there will be this point in your life where you got that setback, but you bounce back, and if all things are good, you completed your education. And even if you didn't complete your education or didn't get any education because of such position, dude, you have the gains, you have the money. In the end, Saturn maybe wanted to teach you something else instead of some knowledge from books, and उस knowledge का आज आपको फ़ायदा हुआ है, आपके पास gains हैं. That's very good. So यहाँ से Saturn also looks at the 8th house of your chart, and 8th house of ups and downs, sudden instability and all, उसको control कर देते हैं Saturn. Uncertainty को control करना, that only Saturn can do, especially if it's in the 8th house or looking from 11th house or from the 2nd house, and all the other positions like also from the 6th house. So कुछ ऐसे positions हैं कि जहाँ पे Saturn हो, it controls the ill effects or bad effects of the 8th house. But this also shows that people are more interested into underground things or hidden things. Astrology में aliens and all, उस subject में काफ़ी इनको interest होता है, और उस चीज़ों के related research भी करते हैं. Maybe you have interest into astrology, or you are gaining knowledge of astrology, and that's why you are watching this video. And if you are watching this video, please like, comment, subscribe and share. तो आपको Saturn और gains देंगे, और मुझे भी gains देंगे उसके साथ साथ. तो प्लीज़ लेट्स एक दूसरे का हम फ़ायदा करते हैं through Saturn in the 11th house. Okay, so also to add, Saturn also gives longevity, क्योंकि लाइफ स्टेबल कर देते हैं, फ्लक्चुएशंस कम कर देते हैं, कंट्रोल में ला देते हैं, एक लॉन्ग लाइफ भी मिलती है बिकॉज ऑफ दिस पोजिशन, बिकॉज 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ longevity, and Saturn is longevity. Saturn is prolonging thing, slow, delay, आराम से चलने दो. तो that also is seen from Saturn in the 11th house. So ऐसे लोगों के लिए बेस्ट करियर है लाइक फाइनेंस, मैनेजमेंट, बिजनेस, network, social networking, some sort of marketplace of raw materials or gems or oil, or something which is underground that Saturn represents. That is very good. Or in which case, even if you are not into such things, and you're doing some other profession, good thing is your gains will grow over the period of time. पैसा बढ़ेगा, नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, सब like mostly this kind of position shifts to a very positive side over the period of time. And like I said, like this is the one aspect. मे बी दशा ख़राब चल रही हो, तो कुछ कोई ख़राब प्लानट की ख़राब दशा चल रही हो, तो फिर ये होकर भी आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. बट सैटर्न की दशा चल रही है एंड सैटर्न इज एक्सल्टेड एंड इन गुड पोजीशन, you will definitely see good results. So just don't go through like what I said कि यही है, ऐसा नहीं है. Results will be 100%, 70%, 80%, 50, 7, 60, 20, 10, 5%. Depends on every other aspect. So we have a long way to go ahead, and we have a long way to learn many things. So keep watching Astropathy YouTube channel. Subscribe, like, comment, share, and let's connect again in the last part or the last video of Saturn through houses, and then we can start some another planet. Okay, cool. So stay positive, keep working hard, believe in yourself. All will be good, all is fine, all will be okay. Stay positive and be in positive energy. If there is no positivity around you, but you have you, and you can be positive from within, and if you're positive from within, it will show outside, and maybe the others also will get positive. And if they're not getting positive, change the group, exit the group, change the group,
or stay alone instead of being in negativity. Okay, take care, bye.